Hi guys, I welcome you all to Inside This YouTube channel. This is going to be part 5 for the Serious 1 2023 current affairs series that we are covering. A lot of you ask me, ma'am, can I do it for CAPF? Can I do it for NDA? Oh yes, you completely can, because the kind of questions that usually come in this particular examination is similar as UPSC holds it, and it is for sure like defense exams. So almost similar kind of trend is followed. Also, please make sure that you follow us on Telegram, because we are going to start up with our 1 month long process of revision. So यहाँ पे आपको एक proper PDF of the regular revision pattern आपको क्या फॉलो करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा विल बी गिवन टू यू. अलॉन्ग विद दैट एक टाइम टेबल हर एक चीज दी जाएगी. साथ के साथ आपके टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट जो होंगे, मतलब रेगुलर आपको टारगेट्स होंगे, शाम में आपको उसके लिए टेस्ट मिलेंगे. सो दिस विल बी प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम, विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. सो यू गाइज कैन फॉलो इट आउट टू परफॉर्म वेरी वेल इन योर एग्जाम. ओके, यू कैन गो अराउंड विद दिस. अगर आप स्टिक नहीं कर पा रहे एक पर्टिकुलर टाइम टेबल से, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या प्रिपेयर करना है, गो फॉर दिस. ओके, ऑल्सो इफ यू विश कि आपको समझ नहीं आ रहा है लास्ट मिनट में क्या रिवाइज करना है, क्या सोर्सेज मुझे फॉलो करने चाहिए, अभी नई नई प्रेपरेशन शुरू करी है, you can download Insight SSB app via link available down in the description box. And this is one of the most useful apps when it comes to defense exam preparation, because everything is crisp and as per to the smart work that Insight SSB has always followed. Limited work and maximum revision जिसके through आप exam qualify कर पाएं. Okay, moving on to the most important thing for which we are here, that is question discussion. So अभी हम जो start करने वाले current affairs, और ये majorly जो इस particular वीडियो में current affairs रहेंगी, ये जैन और फेब के अराउंड की हमारी like current affairs हैं. that is going to be in the examination for sure, because last के जो कुछ 4 महीने होते हैं ना, the most important ones are like November, December, January and February. यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं सेक्शन में when it comes to any of the examination. Why? Because आपका अप्रैल में एग्जाम है, so of course आपसे लास्ट मंथ के तो नहीं पूछेंगे. So you can completely skip on March current affairs as that won't be asked in the examination. ठीक है, चलो अब देखते हैं in which state Indian Navy has recently, that is in Jan 23, conducted a 6-day long mega military exercise जिसका नाम है एम्फेक्स 2023. अगर हम बात करते हैं एम्फेक्स की, what exactly it is? It is biennial. It is one of the biggest biennial tri-service exercise. क्या है? Biennial tri-service exercise है. Now you'll ask what exactly is this biennial. Biennial basically means once in 2 years this particular exercise is conducted. Okay, and इसमें Indian Army, Indian Air Force एंड इंडियन नेवी जो है ये तीनों पार्टिसिपेट करती हैं. इस बार जो कंडक्ट किया गया था दैट वाज इन आंध्र प्रदेश, एंड इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो इट वाज इन काकीनाडा. ओके, so coming to the next question, that is, which of the following has been ranked first in service sector across categories in January 2023? So अभी recently जो है पावर ग्रिड, that is पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको फर्स्ट जो है इन सर्विस सेक्टर अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज दिया गया है एक अवार्ड. इसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा कि महारत्ना, ठीक है, and Navratnas, they are very very important. They ask a lot of question related to Maharatnas and Navratna in your serious examination. In case आपने नहीं प्रिपेयर किया है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज डू प्रिपेयर. आप लोगों ने सुना होगा काफी बार दैट मिनी रत्ना इज देयर, है ना. सो मिनी रत्ना जो है दैट इज द फर्स्ट वन, जो मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर जितनी भी आपकी लाइक इंडस्ट्रीज एंड ऑल दे कम. सो मिनी रत्ना जो है दे मूव टू द स्टेटस ऑफ नवरत्ना अगर अपने कुछ सर्टन चीज़ें जो हैं वो फुलफिल कर पाती है, जैसे कि उनका एवरेज नेट प्रॉफिट क्या रहा है, टर्नओवर क्या रहा है, नेटवर्थ क्या रही है, उस बेसिस पे. एंड देन इट मूव्स टू महारत्ना स्टेटस, है ना. आप लोगों ने देखा होगा काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि नवरत्ना में जो है वो महारत्ना में भी अवेलेबल होता है, जो लिस्ट है ना उसमें वो नाम मतलब दोनों में अवेलेबल होता है. ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज इट हैज काइंड ऑफ सरपास्ड द नवरत्ना वाला स्टेटस, एंड
उनका जो एवरेज प्रॉफिट, अगर नवरत्ना थी उसका एवरेज प्रॉफिट अगर 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है पास्ट 3 ईयर्स में, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ओके, मेक श्योर इट्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो इट मूव्स टू महारत्ना। नॉट ओनली दिस, उसका टर्नओवर जो है फॉर 3 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली 25,000 करोड़ रहना चाहिए, नेट वर्थ जो है फॉर 3 ईयर्स एटलीस्ट 15,000 करोड़ होनी चाहिए, देन इट मूव टू दिस पर्टिकुलर स्टेटस। सेम गोज अराउंड विद मिनी रत्ना, मतलब आउट परफॉर्म करती जाएगी कोई भी जो पीएसयू है एंड इट कीप्स मूविंग अहेड, ओके। और पीएसयू क्या होती है, आप लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज पीएसयू। सो जो भी इंडस्ट्री या जो भी कंपनी है, अगर उसमें 51% स्टेट गवर्नमेंट के रहते हैं और 49% प्राइवेट का जो भी कंपनीज वगैरह है उसके रहते हैं, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ पीएसयू, ओके। सो 51% अगर मतलब देखो 50% से ज्यादा, तो ऑफ कोर्स इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट की कंपनी, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। अब हम मूव करेंगे कुछ नाम जो इंपॉर्टेंट है, जैसे महारत्ना जो है, फर्स्ट वन इज BEL, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और आप सबको इनके नाम याद करने बहुत ज़रूरी है बिकॉज एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आता है CCIL जो है दैट स्टैंड्स फॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। फिर आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, है ना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन यू मस्ट हैव हर्ड HAL बहुत ज़्यादा, क्योंकि HAL के बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं। देन मूविंग ऑन टू MTNL तो आप लोगों ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, हम जो 90s वाले किड्स हैं हम लोगों ने तो सबने देखा है, घर में MTNL के फ़ोन लगे रहते थे, यूज़ करते थे, है ना। अब तो चलो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं। नेक्स्ट है नाल्को इज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ओके। देन आती है NBCC, ठीक है, ये एल्यूमिनियम वाली कंपनी थी। NBCC क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करती है अपने आप में, सो ये हो गई नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। फिर आता है NMDC क्या है, मिनरल डेवलपमेंट, है ना, M फॉर मिनरल, तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कंपनी हो गई। फिर हो गई NLCIL, दैट इज व्हाट, इट इज NLC इंडिया लिमिटेड, ओके। फिर आप लोगों ने ऑयल तो बहुत सुना होगा, है ना, ऑयल क्या है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। देन आती है PFC, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिर आता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, दैट इज RINIL। फिर आता है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी काफी बार आप लोगों ने सुना होगा। फिर आता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये सारी जो अपनी 14 कंपनीज है दे कम अंडर महारत्ना, दीज आर व्हाट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं ये सारी की सारी। उसके बाद हम मूव करते हैं नवरत्ना में। अब कुछ कॉमन नाम आपको देखने को पक्का मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आता है NTPC इज नेशनल थर्मल पावर, ठीक है, थर्मल पावर ऑफ कोर्स, मतलब वहाँ बहुत पैसा निकलता होगा तो ठीक है। फिर आता है ONGC, हम लोगों ने जो बहुत ज़्यादा सुनी है ना वो इसके अंदर आती हैं सारी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। फिर सेल हम लोगों ने बहुत सुनी है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर भेल सुनी होगी बहुत बार, भेल पूरी वाली भेल नहीं बोल रही हूँ मैं सो भेल इज व्हाट, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फिर आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, दैट इज IOCL। देन HPCL, व्हाट एग्जैक्टली स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। फिर आता है कोल इंडिया लिमिटेड, इसके तो बहुत लोग स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, है ना। फिर आता है गेल स्टैंड्स फॉर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर आता है BPCL, दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। फिर पावर ग्रिड भी आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, पावर ग्रिड आता है। फिर आता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिर आता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ये तो आप लोगों ने नवरत्नाज में भी सुने होंगे ना। सो व्हाट, ये 2022 जो है उसमें महारत्ना में कन्वर्ट हुए थे। सो ये जो 12 नेम्स हैं ये नवरत्ना के अंदर है, महारत्ना में ये 14 नेम्स थे, ठीक है। याद रहेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ते रहा करो इंपॉर्टेंट चीज़ों को, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी बार एग्जाम में। नेक्स्ट आता है हु रिलीज्ड हिज बुक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, दैट इज संजीव सन्याल। तो ये बहुत ही नोटेड इकोनॉमिस्ट और हिस्टोरियन है और इन्होंने अपनी नई बुक जो है वो रिलीज करी है। सो इट इज बेस्ड ऑन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल for Indian independence. So this is important. Next आता है कि which of the following has launched low smoke superior kerosene oil for Indian Army specifically? क्यों? देखो इंडियन आर्मी को किस लिए चाहिए, बिकॉज जो नॉर्मल केरोसिन होता है ना बहुत ज़्यादा स्मोक जो है उसको क्या करता है, रिलीज करता है। उससे हेल्थ हजार तो होते ही होते हैं, लेकिन जो पर्सनल हाई एल्टीट्यूड्स पे जहाँ पे लो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन क्या है बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पर केरोसिन यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है
और डिप्लीशन होता है ना, बिकॉज ऑक्सीजन इज यूज फॉर कंबशन, यू गाइज मस्ट बी नोइंग दैट, है ना। कंबशन प्रोसेस में क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। सो उससे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, जिससे बहुत दिक्कत होती है। और इंडियन आर्मी इज सिटिंग एट अ प्लेस लाइक सियाचिन एंड ऑल, सो वन ऑफ द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड जहाँ पे ऑक्सीजन इज ऑलरेडी वेरी लेस, लेह लद्दाख, लॉट ऑफ प्लेसेस, द्रास, कारगिल, तो वहाँ पे ज़रूरत है। सो इस वजह से जो भारत पेट्रोलियम है इसने क्या किया है, लॉन्च किया है एक लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल। और जो BPCL है ये इमर्ज करती है अपने आप में फर्स्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसने कमेंट्स किया है सप्लाई टू LSLA ग्रेड SKO सप्लाईज, ठीक है। तो ये मतलब ग्रेडिंग है ना, जो भी अपने कैरोसिन ऑयल है उसकी ग्रेडिंग है। तो इन्होंने क्या करा है, ये सप्लाई किया है टू द गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी, ओके, उनके लिए बनाया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच कंट्री होस्ट अ स्पेशल वर्चुअल समिट जिसका नाम है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इन जनवरी 2023। तो अगर इसकी बात करते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो इंडिया है उसने इसको होस्ट किया है वर्चुअली, ठीक है, एंड इट हैड बीन अ वर्चुअल समिट। और इसके साथ साथ इसकी थीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। थीम जो है दैट इज़ यूनिटी ऑफ वॉइस, ठीक है, यूनिटी ऑफ पर्पस, ओके। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इट्स theme and it's important। और ये जो इनिशिएटिव है दिस वाज टेकन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इनका जो विजन है दैट इज सबका साथ सबका विश्वास, इसके अंडर ये चीज की गई है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कौन सा एडिशन रहा है FIH हॉकी वर्ल्ड कप का जो कि उड़ीसा में इस बार होस्ट किया गया है। सो जो 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप है ये 15th एडिशन है और ये एक क्वाड्रेनियल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप है, मतलब 4 साल में एक बार ये होस्ट की जाती है। और जो मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम है वो ऑर्गेनाइज करती है, ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करती है जो भी ये मेंस नेशनल फील्ड हॉकी जितनी भी होती है, ठीक है। सो कौन करता है होस्ट? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। और इस बार ये कहाँ हुई है होस्ट? कलिंगा जो स्टेडियम है भुवनेश्वर में, और बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है दैट इज इन राउरकेला जो आपने सुना होगा। सो यहाँ पर ये होस्ट किया जा रहा है इस बार, और ये ऑलरेडी 13 से लेकर 29 जनवरी तक प्ले किया गया। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है दैट विच टीम वन इट? विच टीम वन इट? प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट एंड जिसने सही आंसर दिया होगा उसकी मैं कमेंट पिन कर दूंगी। सो विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स ऑल्सो, जिनको नहीं पता जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अंबेडकर अलाइव, ठीक है। ये जो बुक है अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा, वेरी वेरी फेमस शशि थरूर, है ना, ही इज ऑल्सो पार्लियामेंट्रियन एंड ही इज ऑल्सो एन ऑथर, राइट। सो इन्होंने लिखी है, इनकी लेटेस्ट बुक है जो कि लॉन्च की गई है एट किताब कोलकाता इवेंट इन जनवरी 2023। कहाँ पर? किताब कोलकाता इवेंट में, ओके। सो ये जो ऑथर हैं इन्होंने क्या लिखा है? ही हैज़ एक्चुअली रिटन अबाउट द ट्रेसेस ऑफ आर्क ऑफ द ग्रेट मैन्स लाइफ फ्रॉम बर्थ इनटू अ फैमिली ऑफ महर्स जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थे till his death in Delhi. So everything he has written down here. Okay, coming to the next question that is 79th Grandmaster कौन बनते हैं इंडिया के? So he is none other than Tamil Nadu's Pranesh M. He became India's 79th Grandmaster. Okay, और जो इन्होंने जीता है that was in Norway, ठीक है, अपने GM Frode Olav थे of Norway, उनके अगेंस्ट जीता है and he has won what? He has won the रिल्टन कप, ताकि ये अपना लास्ट जो फाइनल राउंड है उसमें इन्होंने क्लेम किया है। Okay, now before moving forward I wish to tell you that Akash batch has already begun. If you guys are looking out for something जिसके थ्रू आप सब रिवाइज कर सके, सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिल सके, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही मिले, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट मोमेंट पे करेक्ट चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी टाइम नहीं है 6 से लेकर 12 तक की NCERT पढ़ने का अनटिल अनलेस आप पहले पढ़ नहीं चुके हैं, राइट। आप अगर उसकी सेकंड थर्ड रिविजन करें देन इट्स कूल, अदरवाइज एग्जाम में सारे ऑप्शन एक जैसे नजर आएंगे, समझ ही नहीं आएगा कि राइट
आंसर क्या है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गोइंग अराउंड विद द राइट थिंग. एंड देयर हैड बीन ग्रेट रिव्यूज. You can go and check it on the Insight SSB Instagram all handle also. There had been reviews about our FCAT recent, that is FCAT 1 2023 course. You can go and check about CDS to 2022, FCAT to 2022. You get an idea that this is the right platform from where you can begin your preparation right away. Okay, coming to the next question, that is first female cricketer जिनके लिए एक स्टैचू जो है वो कास्ट किया गया है इन हर ऑनर एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड इन ऑस्ट्रेलिया. वो कौन बनती हैं ऐसी फर्स्ट क्रिकेटर? सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क. शी गॉट इट ऑल्सो. हु इज मिथाली राज? जल्दी बताएं, इंडियन क्रिकेट टीम में इनका क्या रोल है? बिकॉज शी हैड बीन टू मच इनटू द न्यूज, राइट? मतलब come on, you must be aware about the female cricketers too. So Mithali Raj किस लिए मतलब what role she has in the Indian women cricket team, तो आप बताएंगे ये. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज इंडिया जो है वो डिप्लॉय कर रही है एक प्लाटून ऑफ women peacekeepers in which country? You guys must be pretty much aware that peacekeeping missions से इंडियन आर्मी के लोग बहुत सारे जाते हैं, नेवल फोर्सेस से जाते हैं, they lot of people go, right? And specifically it is for Indian army जाते हैं. सो आंसर जो है दैट इज सूडान. सूडान में आप लोगों ने बहुत सुना होगा पीस कीपिंग फोर्स रहती है. एंड इंडिया जो है अपने आप में एक लार्जेस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्रीज हैं इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग. ओके, एंड ये जो अभी मतलब जा रही है द यूनिट इज दिस पर्टिकुलर प्लाटून, इट इज गोइंग टू अबई सूडान. ठीक है, और 2007 में जो इंडिया है वो बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने डिप्लॉय किया था ऑल वुमेन कंटेंजेंट टू यूनाइटेड नेशन peacekeeping mission. So very, very important. Moving on to the next question, that is which country will host 15th BRICS Summit in August 2023? तो अगर हम इसकी बात करते हैं, so 26 जनवरी को Sergey Lavrov, that is Foreign Minister of Russia, and Usman Slay, जो कि Foreign Minister हैं of Eritrea, इन्होंने jointly announce किया कि जो South Africa है that is going to be the host for 15th BRICS Summit. और South Africa में Durban as you know basically the host of the 15th BRICS. BRICS जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है? ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, ठीक है. आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? रशिया. आई स्टैंड्स फॉर इंडिया. देन सी स्टैंड्स फॉर चाइना एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका. ठीक है. सो ये जो समिट है अगस्त 2023 में होस्ट होने वाला है. ओके, और जो इससे पहले बात करें तो साउथ अफ्रीका जो है उसने जो 5th ब्रिक्स समिट था वो होस्ट किया था 26 से लेकर 27 मार्च इन 2013. ओके, सो दैट्स लाइक लॉन्ग बैक. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, मतलब स्टार मार्क, बड़े बड़े स्टार मार्क कर लो जितने करने हैं तुम्हें इस पे. ठीक है. सो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज इन द न्यूज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. सो इसका जो आंसर है वो इसलिए रही है G20. तो मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ आज की डेट में G20 ही नजर आ रहा है. ये जो है ये थीम है G20 समिट की, जो कि विच इज अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया दिस पर्टिकुलर ईयर. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं एट लेंथ द सिंबलिज्म ऑफ लोगो जो कि फीचर करता है ग्लोब ऑफ लोटस. आप लोगों को ये नजर आ रहा है यहाँ पे, है ना? सिंबल में क्या है? देयर इज अ लोटस एंड देयर इज ऑल्सो ग्लोब इन बिटवीन दैट. सो जो थीम रही है दैट इज वासुदेवा कुटुंबकम. ठीक है, कुटुंबकम, जिसका इंग्लिश मीनिंग है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. देखो ये आपको अर्थ नजर आ रही है ना यहाँ पे. ओके, सो ये जो इंडिया है 18th जो अपना G20 समिट अभी चल रहा है उसको होस्ट कर रहा है. ठीक है, इन न्यू दिल्ली. G20 जो है इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स नहीं है, और जो एजेंडा और वर्क है G20 का दैट इज कोऑर्डिनेटेड बाय लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ G20, जिनको शेरपास बोला जाता है. क्या बोला जाता है? शेरपास, है ना. सो ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 इंडिया, इंडोनेशिया और जो ब्राज़ील हैं ये परफॉर्म करेंगे. क्या? दे आर गोइंग टू बी ट्रायोका. ट्रायोका जो होता है दैट इज टॉप ग्रुपिंग जो कि G20 के अंदर है, जो कि जैसे पहले अगर हम बात करें इंडोनेशिया थे, करंट इंडिया चल रही है, अपकमिंग ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी रहनी है. सो अभी जो रहनी है, सो इंडोनेशिया और ब्राज़ील जो हैं वो क्या एक्ट करेंगे? एज ट्रियोका. ट्रियोका मतलब ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मतलब टॉप ग्रुपिंग जो कि विद इन G20 है. ओके,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बायट बंडाना। एक रिचुअल है जो कि ऑब्जर्व की जाती है कौन से स्टेट में? सो अगर इसकी हम बात करें, दैट इज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या होता है, एक कार्तिक पूर्णिमा नाम की क्या होती है, ओकेजन होती है, जिसके अंदर लाइक पीपल एक्चुअली मेक बॉयड बंडाना। और ये रिचुअल जो है, इसके अंदर लोग हैंडमेड जो ये बोट्स हैं, आप देख पा रहे हो, हैंडमेड बोट्स बनाते हैं और अपने जो एंसेस्टर्स हैं ऑफ उड़िया पीपल एंड हु लीव ऑन द जर्नी टू द डिस्टेंट कंट्रीज, उस चीज़ को वो क्या करते हैं, एक रिचुअल है जो मेमोरी, उनकी मेमोरी में ये चीज़ मतलब शेयर की जाती है। ठीक है, ऑल्सो एक बार इसका ना आंसर सही कर लेना, आई एम सो सॉरी, द आंसर फॉर द सेम इज उड़ीसा, ओके, नॉट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा रहेगा इसका आंसर। Coming to the next question, that is India जो है, it is set to start supplying diesel to which country through friendship pipeline। So अभी recently इंडिया और बांग्लादेश की एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है वो स्टार्ट की गई है, और ये जो है ये स्टार्ट हुई है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कि हाउ एग्जैक्टली थिंग्स वर्क आउट। ओके, सो ऑलमोस्ट 131.5 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है जो कंस्ट्रक्ट की गई है, जिसके थ्रू क्या इंपोर्ट किया जाएगा, डीजल जो है उसको इंपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, और जो अगर हम बात करें, इसमें से 126.5 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है वो बांग्लादेश के अंदर है, और 5 किलोमीटर की जो लाइन है, दिस इज इन इंडिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दैट कम इन टू रोल, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंटरनेशनल पाइपलाइन है, ये सिलीगुड़ी का जो बेस है इंडिया का, यहाँ से लेके जाएगी मार्केटिंग टर्मिनल ऑफ नुमलाइगर रिफाइनरी। ठीक है, और ये जो है, दिस इज एक्चुअली रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि डेपो है ऑफ बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। ठीक है, बीपीसी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ तक जाएगा। दिस इज द होल पाइपलाइन ऑफ ऑलमोस्ट 131.5 किलोमीटर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, भोपाल डिक्लेरेशन क्या है? अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट 300 लोग मिले थे फ्रॉम इंडिया एंड ऑफ कोर्स अब्रॉड, जिन्होंने भोपाल डिक्लेरेशन जो है वो डिक्लेयर किया आफ्टर डिस्कसिंग G20 एजेंडा। ये जो था एजेंडा डिस्कस किया गया था इन द मीटिंग ऑफ थिंक 20 अंडर G20 करके एक मतलब भोपाल के अंदर ये पर्टिकुलर मीटिंग थी, जिसके अंदर G20 के एजेंडाज डिस्कस किए, और इसमें भोपाल डिक्लेरेशन एक मतलब मेड एन अपील। द भोपाल डिक्लेरेशन वाज काइंड ऑफ अपील टू फोकस मोर ऑन, एक तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। ठीक है, नॉट ओनली दिस, इसके साथ साथ प्रमोट करे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जो कि आयुष है। ठीक है, अच्छा, आयुष के अंदर क्या क्या आता है, जैसे आयुर्वेदा, यूनानी, है ना, सो होम्योपैथी एंड ऑल। सो आयुष स्टैंड्स फॉर व्हाट? जल्दी से नीचे कमेंट करो, बिकॉज ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अंडर आयुष। आयुष एक मतलब अपने आप में एक मिनिस्ट्री बन चुकी है अब, है ना। सो अपने जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है ना, जो हम लोग अपनी वेदास के अकॉर्डिंग चीज़ें फॉलो करते हैं, उसकी बात चल रही है। सो अगर इसकी बात करें, इसका जो आंसर है दैट इज सी, G20। नेक्स्ट जो है दैट इज विच सिटी इज गोइंग टू बी होस्ट ऑफ इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट, जो कि इंडिया में अभी रिसेंटली होस्ट हुआ था। सो जयपुर जो है, यहाँ पर 3 डे लॉन्ग ये क्राफ्ट समिट जो है वो चला था, और इसका जो मेन काम था दैट इज क्राफ्ट्स जो कि उड़ीसा से आए हैं उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। ठीक है, नॉट ओनली दिस, चीफ मिनिस्टर जो नवीन पटनायक हैं वो भी मतलब ही वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ इनॉग्रेटेड द इवेंट थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और 4 जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज और 5 यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज जो हैं उन्होंने पार्टनर किया, एंड दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स दैट हैपेंड रिसेंटली। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है दैट इज विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट एनुअल क्लाइमेट चेंज COP28 इन 2023। नाउ दीज COPs आर लाइक सो इम्पॉर्टेंट। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, और ये ना मतलब अभी तक मैं 3rd क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो नीचे आप ये लिखोगे आंसर, है ना। पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। COP27 कहाँ पर होस्ट हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे। COP जो 28 अभी होस्ट होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी होस्टेड एट अ प्लेस नेम्ड एज अल जाबेर। ठीक है, अल जाबेर ये कहाँ पर है, ये UAE में है। ठीक है, अल जाबेर जो है इस पे थोड़ा सा ना क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने क्रिटिसिज्म भी बहुत करा है। क्यों किया है? बिकॉज अल जाबेर जो है यहाँ पर CEO ऑफ आबू धाबी है ऑफ नेशनल ऑयल कंपनी। नेशनल ऑयल कंपनी, अब आप अपने आप में सोच लो, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की बात चल रही है, एट द सेम टाइम नेशनल ऑयल कंपनी जो कि वर्ल्ड की 12th लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है,
और अपना प्रोडक्शन करती है। सो ये यहाँ पर ही बेस्ड है अल-ज़बर में, दैट इज़ इन यूएई। तो इस पे थोड़ी सी चर्चाएं चल रही हैं, एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं इस बारे में कि यहाँ पर क्यों होस्ट की जाए एंड ऑल दैट। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ थीम क्या रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 में जो मीटिंग अभी रिसेंटली हुई थी। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। दिस हैड बीन व्हाट, दिस हैड बीन द theme for it. Okay, so if we talk about World Economic Forum, ये जो है एक एनुअल समिट है जो कि होस्ट किया जाता है डिवॉस स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप सब लोग जानते होंगे। ये इकोनॉमिक्स क्लॉस स्क्वाब जो है उन्होंने इसको क्या किया था, फाउंड किया था। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडिया जो है उसने एक मीटिंग रखी है ऑन ट्रांसनेशनल क्राइम्स विद विच ग्लोबल ब्लॉक, किसके साथ रखी है। सो इसकी अगर हम बात करें, द आंसर फॉर द सेम इज आशियान। 9th जो आशियान और इंडिया के सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है उसके अंदर ट्रांसनेशनल क्राइम्स की बात हुई है, एंड दिस वाज एक्चुअली अ मीटिंग ऑन वर्चुअल मोड। ठीक है, दोनों साइड्स ने डिस्कस किया कैसे हम लोग कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आशियान इंडिया वर्क प्लान कैसे हम कॉम्बैट कर सकते हैं ट्रांसनेशनल क्राइम्स को। सो 10th जो है आशियान इंडिया सोमटैक कंसल्टेशन हुई है, एंड जो नेक्स्ट है दैट वाज गोइंग टू बी हेल्ड इन 2023 इन इंडोनेशिया। ठीक है, सो दिस अगेन गेट्स रोली इंपॉर्टेंट, थोड़ा पढ़ लिया करो अगर नहीं आते हैं क्वेश्चंस तो, है ना। थोड़ा बहुत अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो स्टिल एटलीस्ट ये जो सीरीज़ है इसे अच्छे से कर जाना, काफ़ी हेल्प मिलेगी तुम्हें एग्जाम में। नेक्स्ट है, एज पर द इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करी है व्हेन इट कम्स टू क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। क्लीन कैसे आएगी इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ कोर्स लाइक हम लोग वी कैन नॉट यूज दोज मेथड्स ऑफ कोल वगैरह से प्रोडक्शन एंड ऑल ऑफ दैट। क्लीन एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हेन वी आर यूजिंग थिंग्स लाइक सोलर पैनल और मे बी विंड मिल्स एक्सेट्रा। सो इसका जो आंसर है आप सब लोग जानते होंगे यार, मतलब विंड मिल्स वगैरह एक्सेट्रा ये सब कहाँ ज़्यादा हैं, कर्नाटका गुजरात है इसका आंसर, है ना। कर्नाटका गुजरात जो है दीज आर अमंग द मेजर स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू क्लीन एनर्जी। ओके, एंड अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट है दैट इज़ दिस इंडिया स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग जो ये जो है ना, बनाता कौन है ये भी पूछा जा सकता है। IEEFA, दिस स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट, अपने लिख लो जल्दी से, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ओके, ये रिपोर्ट जो है 16 स्टेट को एनालाइज करके बनाई गई है, और ऑलमोस्ट 90% जो इंडिया का एनुअल पावर रिक्वायरमेंट है ये इसको अकाउंट में रखते हुए ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक बहुत ही रेयर लो एल्टीट्यूड बसाल प्लेट्यू जो है वो वेस्टर्न घाट्स में डिस्कवर किया गया है। कौन से स्टेट में, वेस्टर्न घाट्स के थ्रू तो आप ये बता सकते हो, अब आपको पता है इंडिया में वेस्टर्न घाट्स कहाँ है, ईस्टर्न घाट्स कहाँ है, तो उसके बेसिस पे आप लोग क्या बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता, तो स्किप आउट कर सकते हैं ना। थोड़ा वी हैव टू बी सेंसिबल कि अगर वेस्टर्न घाट पूछा गया तो हम कोई गलत ना मार्क कर दें आंसर। तो महाराष्ट्र में जो है साइंटिस्ट्स जो हैं ARI स्टैंड्स फॉर अगाकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने एक बहुत ही लो एल्टीट्यूड बसाल प्लेट्यू जो है उसे वेस्टर्न घाट्स में फाउंड किया है। नेक्स्ट जो है दैट इज, ओ गॉड दिस इज लाइक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो 11th क्लास की बायोलॉजी है उस वाले में ये कितना, मतलब दिस इज बायोलॉजी वाली जो बुक है उसमें इतना प्रॉपरली मेंशन है ना, नीला कुरिंजी, दैट इज स्ट्रोबिलेंथिस कुथियाना, दिस इज द साइंटिफिक नेम एंड सो इम्पॉर्टेंट। वाई सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर अपना फ्लावर है ये बहुत, मतलब 12 साल में एक बार देखने को खिलने को, कोई खिलता हुआ से देख सकता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक प्लांट है जो कि एंडेमिक है to a small endemic means it's like very specific to this place only. Okay, and you can see the color, it's purple colored. बहुत ही small stretch जो है वेस्टर्न घाट्स का वहाँ पर मिलता है। कहाँ पे, एक तो मंगला देवी हिल्स जो हैं, और इसके साथ साथ मिलता है नीलगिरी हिल्स में। ठीक है, सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो अपनी यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने क्या किया है, नीला कुरिंजी फ्लावर्स को ऑन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स, कौन सी लिस्ट, लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स के अंडर डाल दिया है। ठीक है, एंड ये जो है इट कम्स अंडर शेड्यूल 3, इट कम्स अंडर शेड्यूल 3 ऑफ
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बस इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म होता है। पार्ट 6 जो है आई विल ट्राई एंड पुट इट ऑन 13th ऑफ मार्च। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑल दीज पार्ट्स एंड अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड गिव योर बेस्ट।